when we say, and as I have added, India's Israel relation is also there right now with your in your syllabus. Why? Because what is our policy towards those countries which are hostile in the international levels? About those countries like Pakistan, which is also called as somewhat थोड़ा सा मतलब कि हम कहते हैं sensitive countries, and towards all those countries like US और Russia which have been called as the developed country, तो हम लोगों ने क्या क्या policies बनाई थी. And of course I can say that as a part that कि India really has a very good relations at the international level. एंड ये सब आपका रिफ्लेक्ट हुआ था व्हेन इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था. तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारा आया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. दैट सेज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्यों हम बोलते हैं बेटा, दैट इज नॉट एप्लीकेबल एज स्टैट्यूटरी. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके अप्लाई होते हैं वेन एवर देर इज अ नीड, वेयर एवर देर इज अ नीड, दीज प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड. दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट मतलब कि ये रिजिड नहीं होते हैं. बट दे सेड इंडियाज पॉलिसी शुड endeavor international peace and security. It should have a congenial relation. Why I am saying it is मतलब कि it is not rigid, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तो we had war with our neighbors also. तो वी कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली से कि ऐसा होना चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाएगा यू हैव टू फॉलो इट. फॉस्टर रिस्पेक्ट फॉर योर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रिटी, जिसमें लोगों के लिए मतलब यहाँ फॉस्टर रिस्पेक्ट लिखा है. देन ऑल्सो वी हैड नॉट साइन सर्टन ट्रिटीज बिकॉज दैट वर नॉट फेवरेबल फॉर अस. एंड वी शुड एंटर डिलिबरेटली एंड इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स में अपने आप मतलब कि सेटलमेंट में अपना हिस्सा दिखाना चाहिए. Like India has been an active member in UN, right? Before we could proceed to anything, what we had already, हम लोग बार बार कहते हैं कि we did not align to anyone. We had taken that हम अपनी जो development है that we would be doing using our own resources by keeping relations with everyone. That is why non alignment को भी हम लोग जो है foreign relations के अंदर लेकर आ रहे हैं बच्चा, क्योंकि that also tells कि हमने एक तरफा कोई भी फैसला नहीं लिया था. So the policy of non-alignment was a policy of a good foreign relations, and it influenced many people, many countries across the world like Asia or African countries. And then Indian National Army, which was formed by Netaji Subhash Chandra Bose, that also was a clear manifestation that India had a clear cut policy towards other countries. जहाँ ज़रूरत पड़ी थी वहाँ उसने हमेशा आगे मतलब कि it had been there. Now any country's foreign policy reflects the interplay of domestic मतलब internally वहाँ के states, वहाँ के जो people, how they react, and also the external factors. Like we have certain रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने देखा होगा कुछ कुछ कंट्रीज के लिए स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन द इंडस्ट्री देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस पुट, एंड दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर. व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन एक्सटर्नल फैक्टर? बिकॉज अगर ये फैक्टर ऐसा है जो इंडिया के डेवलपमेंट में या इट मे बी हैम्पर टू द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, then we frame those policies. So the foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic as well as the external factor. The noble ideas that inspired India's struggle inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. Yes, because हमारे साथ में जब हमारी फॉरेन पॉलिसी को हमें फ्रेम करना था तो देयर वर मेनी फैक्टर्स. एक तो लॉन्ग नेशनल स्ट्रगल,
So we need to keep everything in mind कि दोबारा we do not fall into those traps. Secondly, हमारा independence was coincidence to Cold War era. That was completely two poles were there और एक के साथ भी करने का मतलब था दूसरे से आप जो हो दुश्मनी मोल ले रहे हो. So that was marked by the political, economic and military confrontation at the global level by the two superpowers US and USSR. Plus वही टाइम ऐसा था आफ्टर 45 even we also the world also witnessed the establishment of UN, the peacekeeping force, then the treaties of nuclear weapons, creation of nuclear weapons, चाइना का कम्युनिस्ट होना ये भी वही पीरियड था. सो वी हैड टू कीप एवरीथिंग ऑल दीज फैक्टर्स जो इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में जो जो चीज़ें हो रही थी उन सबको हमें जो है वी हैड टू कीप इट इन. नाउ एट द वेरी फर्स्ट मीन्स बिफोर वी कुड frame a proper constitution, we could frame a proper government, we had the interim government which was headed by Jawaharlal Nehru. Later Jawaharlal Nehru, he was himself the prime minister as well as the foreign minister. He kept that portfolio with him. बहुत कम हुआ है बट देयर हैव बीन इंस्टेंसेस और हमारे जितने भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स रहे हैं दे हैव बीन वेरी गुड. आई डोंट नो अभी करंट जो राजनाथ सिंह है आई एम नॉट दैट मच अवेयर अबाउट हिम बट ये सुषमा स्वराज वॉज गुड. इवन आर अदर फॉरेन मिनिस्टर्स क्योंकि उनकी बातें वो किस तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं किस तरीके से इंडिया के डेवलपमेंट के लिए दे वर्क दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट वॉज नेहरू. उन्होंने जो था द 3 मेजर ऑब्जेक्टिव रखा था हमारी सोवरेनिटी यानी कि रूल ऑफ आवर ओन, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी यानी कि द पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज शुड नॉट ट्राई टू इन्वेड अस एंड ऑफ कोर्स द डेवलपमेंट. और ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी. दैट वाज हिज करंट मतलब कि हिज 3 ऑब्जेक्टिव. ही वांटेड these objectives to be fulfilled by non-alignment. At the same time there were people like Ambedkar, those who were opposed to communism also wanted India to follow a pro-US foreign policy. But फिर भी इंडिया जो था that attained in between रहा. It was not neutral but it kept distance from both the camps. It wanted a peaceful world by advocating policy of non-alignment by reducing the Cold War. अब इंडिया ने उस वक्त में कैसे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया? In 56 when Britain attacked Egypt over the Suez Canal, India led the world protest against this neo-colonial invasion. उन्होंने कहा this is a kind of colonial invasion. But when USSR invaded Hungary, उन्होंने उस वक्त में नहीं दिया because it did not feel it. Despite such situation, by and large, India did take an independent stand on various international issues. While India was trying to convince the other developing countries about the policy of NAM, Pakistan joined US-led military alliances and that is why US was not happy with us. ये मैं आपको कई बार पहले भी बता चुकी हूँ कि इंडिया से इसलिए US 1990 तक नाराज रहा है. अब नाराजगी का मतलब ये नहीं था कि दे स्टार्टेड फाइटिंग विद अस, नो, बट उनकी जो पॉलिसीज होती थी टुवर्ड्स द सदर्न मतलब कि एशियन कंट्रीज ऐसे बनाते थे. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द कॉमन पीपल और फॉर आवर ट्रेडर्स फॉर अदर मतलब कि कंट्री टू गेट some aid from US. आज आपके लिए बहुत आसान है. अभी मैं मतलब कि इनफैक्ट आई कैन से मतलब इट इज नॉट लाइक बोस्टिंग बट इट इज व्हाट आई कैन से इज इट्स इट लुक्स वेरी इजी कि यूएस जाना ठीक है. आप में से भी कई बच्चे हो सकते हैं जो यूएस चले जाएं. द पॉलिसीज दे हैव केप्ट फॉर एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट दैट आर ऑल और जो ट्रेड रिलेशंस ये सब उन्होंने जो है काफ़ी ईज आउट कर दिया. बट एट दैट टाइम यूएस वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव एंड द नॉन अलाइनमेंट. देयर वॉज अ कंसिडरेबल अनईज इन इंडो यूएस रिलेशंस ड्यूरिंग 50s और इंडिया का
यूएसएसआर के साथ जो फ्रेंडशिप था, ट्रेटी था, उसको भी यूएस कंडेम करता था. बट इट वाज ओनली लेटर 1970 के बाद, यू कैन से आफ्टर दिस liberalization period, India, मतलब कि we had a very good relations, and all those president after that period has welcomed India as a part of their country. Today, if you go to India, US, you will find more Indians than Americans. Now we are having that. That is the way, right? Next हमारा जो मतलब कि वी हैव सपोर्टेड द कंट्रीज लाइक अफ्रीका, हम लोगों ने सपोर्ट किया है. ही Nehru envisaged a major role in world affair and specifically in the Asian affairs. He had been advocating unity of Asia and he even convened, start किया था Asian Relation Conference also. India made earnest efforts for the early realization of freedom of Indonesia from Dutch, वो भी इंडिया ने किया था. We were a staunch supporter for South Africa. We all know that. The Afro Conference held in Indonesia city of Bandung in 55, commonly known as Bandung जो था, that was in fact when नाम was found. ये आपके पेपर में भी आ सकता है. The Bandung Conference later led to the establishment of NAM. The first summit was held in Belgrade, and we also say Nehru was a co-founder for NAM. Thus, we can say that the initial period of India's foreign policy's derivation was affected by all the external factors that we could see. हम लोग हिंदी में कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर पीता है. तो इंडिया हैड टेकन द स्टेप्स इन दैट वे, धीरे धीरे करके वो स्टेप्स ले रहा था. इट वाज लुकिंग इनटू ऑल द फैक्टर्स कि कैसे जो है रिलेशंस को रखना है. नाउ डेफिनेटली चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा. येट चाइना के साथ वी हैड द this agreement what we call as Panchashil. This can be an important part of your syllabus. Panchashil आपका है the existence of 5 principles. ये था आपका stronger relations between the two countries. They will not be interfering into each other's matter. They would keep the territorial जो मतलब कि रिलेशंस हैं उसको हेल्दी रखेगा. दैट वाज स्टार्टिंग में हमारा जो था, इट वाज वेरी गुड. एंड ये पेपर में वैसे तो पहले आता था, दिस यूज्ड टू कम एज 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन. टिल 60 हमारा रिलेशन उनके साथ में बहुत अच्छा था. एंड दैट इज व्हाई मे बी वी हैड signed this agreement also on 29th April 54 with Premier Zhou Enlai. But in 62, 8 years after, ये जो हमारा हिस्टोरिकल बफर था, जो हमारी एक रिलेशन था, उस पर एक डेंट लग गया. एंड दिस इज बिकॉज चाइना हैड अनेक्स तिब्बत. एंड तिब्बत को प्रोटेक्ट किया था इंडिया ने, नॉट मिलिट्री वाइज. हमने मिलिट्री वाइज कोई प्रोटेक्शन नहीं किया था. हमने चाइना के खिलाफ कोई आर्म्स नहीं उठाए थे. इवन वी डिड नॉट ओपनली नो ऑल्सो, बट तिब्बतियन कल्चर जो लोग थे, दे स्टार्टेड टेकिंग shelter in our country. In this Karol Bagh also you have a complete Tibetan market, and all these people got this मतलब कि shelter यहाँ पर. And जब तिब्बत के वहाँ के spiritual leader हमारे पास आए, he asked for the political asylum. At that period, India ने as a good neighbor, as a good hospitality उनको shelter दिया. This was not liked by China. उन्होंने कहा कि जो हमसे भागा आप उसको कैसे दे रहे हो. And till date China उस चीज़ से बल्कि नाराज़ है. But Dalai Lama जो है, he is still operating from our country near Dharamshala. This was the first major dent. और तब से हमारा जो relation है with China has not been that much good. Secondly, there was a boundary conflict आपका लद्दाख के अक्साई चिन में और नेफा वाले अरुणाचल प्रदेश में.
and even China had tried to occupy that area by building the roads also. Abhi bhi 2 years back also they had done. Even though there were some talks, yet there was a massive invasion. They had even invaded certain parts of Arunachal Pradesh. और आपका एक पोर्शन में तो हम लोगों ने जो है लद्दाख में तो वी हैड इवन ट्राई टू सेव आवरसेल्व्स, बट चाइना ने बाद में खुद यूनिलेटरल सीज फायर करके इसको ख़त्म किया था. लेकिन हमारा ये जो रिलेशन था विथ चाइना, दैट हैड कंप्लीटली स्पॉइल्ड. Yes, after that many prime ministers and leaders have visited each other, but we have still not found a relation. अभी in fact today I was reading, अभी मैं मतलब कि एक वो पढ़ रही थी that China is going to support Taliban for forming the this government, and I was just thinking कि चाइना जो है बैठे बिठाए it is taking the enmity from all over the world. हम जो है वी आर गिविंग, मतलब ये फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा मैं बता रही हूँ. हम जो है वहाँ के जो लोग हैं उनको शेल्टर दे रहे हैं, वो उनको जो है दे आर सपोर्टिंग. यू कैन जस्ट इमेजिन दिस इज वेयर थिंग्स आर गोइंग. नाउ द इंडिया जो है उस वक्त में मीन्स वी वर नॉट सपोर्टिंग एनी ऑफ द अलायंस, yet we had to go to America and Britain for military assistance. सोवियत यूनियन वैसे तो बहुत ज़्यादा चाइना को सपोर्ट कर चुका था, इसलिए इट वॉज न्यूट्रल. उस वक्त में नेहरूज डिफेंस मिनिस्टर हैड टू लीव द कैबिनेट. देयर वॉज वन मूवी ऑल्सो, भी मैंने रिसेंटली देखी थी वो मूवी, वॉर ओवर द हिल्स. आई इवन टोल्ड यू टू वॉच दैट मूवी. सुमित ने मुझसे पूछा भी था, वॉर ओवर द हिल्स. Do you remember? That's one of the movie that will tell you how our relations with China had spoiled. वो एक particular movie अगर आप मतलब it's not a movie actually, it's a series, but that would tell you how it has. And उस वक्त में जो हमारे foreign minister थे, defense minister, he had to leave, he had to resign. And at that time in मतलब कि नेहरू जो है he had a backlash from all of the members. और नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है दैट वाज डिबेटेड, एंड इवन दे हैड इवन लॉस्ट देयर इलेक्शंस. यानी कि एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारा होता है, जो हमारी फॉरेन रिलेशंस होते हैं, दैट आल्सो हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द इंटरनल रिलेशंस. दैट आल्सो टेल्स दैट पीपल का जो ट्रस्ट होता है वो कितना कम हो जाता है. द सिनो इंडियन कॉन्फ्लिक्ट affected the opposition as well. ये पेपर में आता है बेटा. Why? There were people those who were supporting USSR, जो कि रशिया एंड चाइना. कुछ लोग कम्युनिस्ट पार्टी जो है they were, and the other faction was for sometime closer to China and was against any ties with Congress. And CPI जो उस वक्त में था, which is one of the oldest party, 1922-25 में फॉर्म हुआ था, that had split into two, CPI and CPI-M, and still that is going on. अब जा रहे हैं वो पीछे जो वॉक पे शाम हो गई. The effect of war on northeastern region, that is NEFA. अभी भी वहाँ पर there are many areas in Arunachal Pradesh which are specifically under Chinese territory. So that is why even northeast के जो लोग हैं ना, they are not having that much confidence. Even though मतलब कि we have given certain privileges to them, like Nagaland was granted statehood, Manipur and Tripura through, and union territories से they were also given the right to have their own legislative. ये क्यों था? क्योंकि वहाँ के लोगों को हमारे ऊपर जो है भरोसा नहीं था. And this was because of the invasion, because that really dented the image of India. Now, after that till 76 हमारा जो relation था that was not so good, but yes, again and again Atal Bihari Vajpayee was the first.
टॉप लेवल लीडर, ये पेपर में जब आता ना आप लोग गलत करते हो. Atal Bihari Vajpayee was a top level leader when he visited China, and Rajiv Gandhi was the first prime minister who visited China. Right, there is a difference. Atal Bihari Vajpayee was a leader and Rajiv Gandhi was the prime minister. They were different, मतलब कि जो differences हैं उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की गई थी. Yes, after what we call as globalization, तब के बाद से हमारा रिलेशन ट्रेड में उनके साथ बहुत अच्छा रहा, बिकॉज इंडिया को भी ज़रूरत थी रॉ मटेरियल्स की जो सस्ते में मिल जाए, एंड चाइना वाज द ओनली कंट्री विच वाज प्रोवाइडिंग ऑल दीज. एंड आफ्टर दैट हमारा रिलेशन विद देम ऑन द ट्रेड हैज़ इम्प्रूव्ड. यस, एक टाइम बीच में ऐसा था, आई कैन से 2000, जब एजुकेशनल एरिया में भी इंडिया का रिलेशन विद चाइना वाज वेरी गुड. इवन अभी भी है. इफ यू वांट टू डू एमबीबीएस यू कैन गो टू चाइना, you can have a 5 years MBBS. There is an easy entry which is not possible in any country, in any state of India easily. आप यहाँ पर 1 crore लगाकर भी you may not be getting an admission, you have to pass through NEET. But there are, और चाइना के लिए जो है there was a wave in 2000 जब people used to go to China. China, Uzbekistan, and then there are Georgia, ये सब areas में. तो we had a very good relations with them, but ऑफ लेट अगेन हमारा रिलेशन उनके साथ थोड़ा खराब हुआ है. एंड दैट इज वाई जो आपका एक कार्टून आता है हिंदी चीनी भाई भाई, बिकॉज ऑफ द agreements, because of our very good relations, it was considered that Indians and Chinese are going to be having a brotherly relations. Later on it was removed and Amul ने add दिया था हिंदी चीनी bye bye. Right? Our relations with Pakistan is always a controversy. We have never been in peace with them. रोज हम अगर अभी न्यूज़ डालेंगे तो विल कम टू नो वहाँ पर सीज फायर था, यहाँ पर सीज फायर था. वी ऑलवेज हैव अ कन्फ्लिक्ट. 47 में व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान हैड पार्टीशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियस डिफरेंसेस, इवन उसके बाद 1947 में जो है उन्होंने हमें इन्वेड किया था, and some part of India was occupied by Pakistan called as POK. हमारा conflict with them on Kashmir issue, on Indus River issue, ये भी हमारा उनके साथ में अभी भी है. Then some of the relations like हमारे बहुत सारे ऐसे नेता थे those who said that हम लोगों ने पाकिस्तान को कुछ special promises किए थे that we will be giving the aids to them. तो पाकिस्तान का कहना था कि इंडिया हैड नॉट गिवन दोस एड्स इन द वेरी बिगिनिंग. तो ये हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रहे विच वर मेजर इश्यूज. देन रन ऑफ कच्छ, दैट्स नियर गुजरात, द कॉमन एरिया विच वॉज अर्लियर शेयर्ड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान, वहां पर देर वॉज अ वॉर बट इट वॉज नॉट. शास्त्री जी जो उस वक्त में हमारे मतलब की थे, he had tried to launch a counter offensive. Then later with the intervention of UN, Indian Prime Minister and General Ayub Khan ने ताशकंद एग्रीमेंट साइन किया था which was done in Soviet Union in 1966. That also marked the death of Shastri ji. There are so many mysteries going on, but nobody knows what was the reality. Many of the people say that it was a murder. With Bangladesh, we had a very good relations. Why? Because Bangladesh was part of India. It was the creation of East Pakistan and West Pakistan. और East Pakistan को India हमेशा सेंटर मतलब कि सपोर्ट करता था. Later, when Bhutto's party emerged a winner in West and Awami League in Sheikh Mujibur, उस वक्त में ईस्ट पाकिस्तान जो था they wanted that, वेस्ट पाकिस्तान जो था they wanted to completely control east, लेकिन ईस्ट पाकिस्तानी लोग जो थे they did not want to be second class citizens under West Pakistan. तो there was a conflict between these two Pakistans. पाकिस्तानियों ने शेख मुजिब को मतलब कि
अरेस्ट किया, वहां रेन ऑफ टेरर मतलब लोगों में दहशत फैला दिया। तब जो वहां बांग्लास थे, बेसिकली क्या था, पाकिस्तानीज इम्पोज्ड उर्दू देयर, एंड बांग्लादेश आपका बेसिकली बांग्ला स्पीकिंग है, सो दे वांटेड बांग्लास टू हैव अ सेपरेट ऑटोनॉमस एरिया। इंडिया ने इसको सपोर्ट किया, पाकिस्तान को यूएस एंड चाइना ने सपोर्ट किया। यहां तक इट इज सेट हेनरी किसिंगर द एडवाइजर ऑफ यूएस मेड अ सीक्रेट विजिट टू चाइना वाया पाकिस्तान। और यही टाइम था जब इतना सारा कुछ हो रहा था, तो इंडिया ने भी जो है रशिया के साथ एक फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया था, सो दैट अगर बाद में ये तीनों कंट्रीज साथ में हो जाए तो एटलीस्ट समबडी विल बी देयर टू हेल्प देम। दिस वाज आल्सो सेड एज एन अलाइनमेंट टुवर्ड्स सोशलिस्ट ब्लॉक, बट हमने सोशलिस्ट ब्लॉक को नहीं किया था, वी ओनली हैड टेकन सपोर्ट फ्रॉम रशिया। देन इंडिया सपोर्टेड ईस्ट पाकिस्तान बिकॉज हमारे पास रेफ्यूजीज भी आ रहे थे। दैट टाइम देयर वॉज अ फुल फ्लेश्ड वॉर and it led to the separation of Bangladesh from Pakistan. And this was with the treaty that was signed between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto, which is also said to be Shimla Agreement. और इस वॉर से इंडिया का मतलब ये हमारा एक्सटर्नल रिलेशन था, इसकी वजह से जैसे चाइना की वॉर की वजह से नेहरू जी का इमेज डेंट हुआ था, इसकी वजह से इंदिरा गांधी को आयरन लेडी का नाम मिला था। सो दैट इज हाउ व्हाट वी कॉल एज आवर रिलेशंस विद अदर कंट्रीज जो है वो इफेक्ट करते हैं। मतलब बिना मतलब कि अगर आप वॉर करोगे तो देयर माइट बी सम प्रॉब्लम। इंडियाज रिलेशन विद इजराइल, इजराइल को तो कोई भी अच्छा नहीं मानता है, देयर हैज ऑलवेज बीन कन्फ्लिक्ट, वहां हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है। एंड बट दोनों का एक कॉमन चीज क्या था, दोनों को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से ही आजादी मिली थी, सो दैट मीन्स वी हैड अ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज। बट राजीव गांधी जी was the one who had opened the Israeli embassy in 1992. काइंडली डू नॉट थिंक कि मैम हमेशा राजीव गांधी जी का नाम क्यों लेती है, क्योंकि वहां से आपका जो रिलेशंस ऑफ अवर हमारी जो कंट्री का रिलेशंस विद अदर कंट्रीज था, ड्यू टू द liberalization, privatization had taken a new shape. That was a time when new economic international जो हमारा new economic policy था that came into effect. And even after this थोड़ा टाइम था, बट अब दोबारा जो हमारा गवर्नमेंट है, एनडीए का जो गवर्नमेंट है, उन्होंने जो है दे हैव इंटेंसिफाइड द फ्रेंडशिप। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड विजिटेड, वहां के जो बेंजामिन थे ही हैड आल्सो विजिटेड। नाउ वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एक्सचेंजेस, कल्चरल, डिफेंस, काउंटर, मतलब कि वी आर देयर। यस, वी हैव बीन सपोर्टर्स टू देम। कोरोना के टाइम पे इंडिया हैड also supported Israel by sending the materials to them. हम लोगों ने हर तरीके से उनको जो है हेल्प किया है as a foreign policy or you can say as a friend, right? Last but not the least is the foreign policy, the nuclear policy. India has never had this कि हम लोगों को जो है nuclear policy should be used for any war. India Nehru wanted science and technology as modernization. He wanted nuclear programming to be as a part of development, and that is why he had asked Homi J. Bhabha to generate the atomic energy for peaceful purposes. हमने उसे एनर्जी के लिए यूज किया था, but Nehru was against nuclear weapon, and when communist China conducted the nuclear test in 64, there were many imposition, but India ने उसको नहीं साइन किया था। इंडिया ने साइन नहीं किया था because India believed that our nuclear weapon or nuclear fission जो है, that's only for peaceful purpose, that is only for energy purpose, it is not to initiate war. The period when the nuclear test was conducted, हमारा पहला था 18th May 1974. That is
फॉलोइंग द अरब इजराइल वॉर ऑफ 73 सब जगह पर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए थे एंड इंडिया ने उस वक्त न्यूक्लियर पॉलिसी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी किया था. येट इट वॉज सेड टू बी वन ऑफ इंडियाज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन. और सेकेंड हमारा बाद में हुआ था, इट वॉज ऑल्सो appreciated by everyone including the oppositions. India has always stood, जो हमारा सेकेंड था वो 1998 में था, जिसको हम पोखरान के नाम से भी जानते हैं, एंड द फर्स्ट वन वाज, और इसके भी आपके जो हैं देयर वर सम सीक्रेट नेम्स गिवन, देयर वर सम सीक्रेट नेम्स गिवन टू दीज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. जैसे आपने उसमें पढ़ा था फॉर दिस जो अमेरिका ने किया था स्मार्ट बम्स, उसी तरीके से हमारा इसके लिए भी हुआ था, दैट इज न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए भी दिया गया था फॉर इंडिया. देयर वर कोड नेम्स गिवन. शक्ति वॉज गिवन फॉर दिस सेकेंड पोखरान के लिए जो था, दैट वॉज आपका शक्ति था. यू कैन राइट डाउन इफ यू हैवंट रिटन. एंड पहले वाले का नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, राइट. द फर्स्ट वन वॉज स्माइलिंग बुद्धा एंड द सेकेंड वन वॉज कॉल्ड एज शक्ति. इंडिया बिलीव्स दैट न्यूक्लियर वेपन क्यों हम लोग फॉरेन पॉलिसी में लेकर आते हैं बेटा, वंस अगेन दिस इज बिकॉज दैट ऑल्सो टेल्स कि ऐसा तो नहीं है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहे हैं टू अटैक अदर्स, तो नो, वी हैव ऑलवेज डिटर्ड नो फर्स्ट यूज. इंडिया विल नॉट बी यूजिंग इट फॉर एनी फर्स्ट टाइम, हम खुद नहीं यूज करेंगे, बट येस, there is one more controversy, and that is that no first use cannot be used as never. India is committed to NSGs and opposing and मतलब कि इसका, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो they will use it. and ये आपका हुआ था when पाकिस्तान जो था that was again and again disturbing us. उस वक्त में जो है it was told that you should not think that हमारा जो फर्स्ट यूज है दैट इज नो फर्स्ट यूज. का मतलब ये नहीं कि हम यूज ही नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से पहली बार नहीं करेंगे, बट सामने वाला करेगा तो हम जवाब जरूर देंगे. दिस इज ऑल्सो देयर एज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. नाउ आफ्टर 77 we have always had number of different political parties. In the initial period till 1970s, we had only one political party as center and that was Congress. लेकिन उसके बावजूद हमारे जितने भी आए हैं, whether it is NDA, whether it is जनता पार्टी, whether it is anyone, everyone has followed these foreign policies the same manner जैसा उसे किया गया. Foreign policy is always dictated by ideas of national interest. In the period after 1990, रशिया हमारा फ्रेंड है बट अब ग्लोबल डोमिनेंस में नहीं है, एंड नाउ वी आर मोर ऑन टू प्रो यूएस. हमारा कंटेम्पररी इंटरनेशनल सिचुएशन इज मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इकोनॉमिक इंटरेस्ट, नॉट, क्योंकि शुरू में तो मिलिट्री का ही था और हमने भी वही चीज़ें ली हैं. कश्मीर हमारा कंटेंशियस इशू है, येट वी आर हैविंग नॉर्मलाइज्ड रिलेशंस. वी आर हैविंग कल्चरल एक्सचेंज, मूवमेंट्स ऑफ सिटीजन्स, इकोनॉमिक कोऑपरेशन. हमारे बड़े मतलब कि अनियंस वगैरह जो हैं वी आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम देम, वी आर ऑल्सो इम्पोर्टिंग मेनी थिंग्स टू देम. हमारा जो कॉमन आपका जो उसका नाम क्या है, पंजाब में जो बॉर्डर है, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एरिया ऑफ सेलिब्रेशन. दीज आर ऑल देयर, राइट. So in this manner, India has maintained a good foreign relationship. And right now in June 2020, अभी कन्वीन हुआ था just एक महीने पहले, India has been elected as non-permanent member for 2 years, और August 21 में स्टार्ट हुआ है हमारा UN का. उसके अभी 2 आई थिंक मतलब कि
वर्चुअल मीटिंग्स भी हो गए हैं. सो इंडिया हैज़ बीन, मतलब कि पहले हमारा 50, 67, 72, 77, 84, 91, 2011 and again in 2020 we have been elected. So this shows that we are maintaining a cordial relations with all our neighbor countries and international friends, right? So this is, I have already also written here Operation Shakti आपका, then आपका Operation Smiling Buddha, ये रहा लिखा हुआ है. These are all the important concepts that you can learn.